Students, this is Kishan Lal from Military Career Point Academy, and today we are going to understand how we can prepare uh, ourselves for in the final month to get better marks, to have a better revision. So I have prepared a presentation for all of you, just so that you come to know how we can plan in the remaining 30 days. So this is All India Sainik School entrance exam to 2026 30-day master plan, and it will contain revision strategy to maximize the score for your ninth class. So it will the focus area for this is for the 30 days will be the speed, accuracy and high yielding topics. इस प्लान में हमारे जो हम कंसीडर करेंगे, जिन पर हम विचार करेंगे, वो हमारे क्वेश्चन आंसर्स को करने की स्पीड, टाइम के अंदर करना, उनको सटीकता से एकदम सही तरीके से करना, और उसमें उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना जो टॉपिक ज़्यादा नंबर देने वाले होते हैं, जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं. सो लेट अस carry on. So how we will go to, we will first to know how to win the battle. So for this we have to understand, as you already know, the numbers for the different subjects. Like we have 400 marks in total. In mathematics we have 50 questions, each carry 4 marks, so this come to 200 marks. The remaining intelligence, English, general science and social science have 25 questions, 2 marks each, that comes to again 200 marks. So there you will get in sum up 400 marks in total. But the mathematics is a priority one, because you have 1 into 4 marks for that. So it is very scoring, but it consumes as well the time also. So one plus point you have is that there is no negative marking. So you have to attend all the questions irrespective of, in some cases you don't know the answer, you later on just fill with best of your guesses. Let us come to the next plan, which starts from week 1, means we have 4 week remaining. So let us consider this present week as the week number 1. So what we have to do, our goal should be to revise our NCERT basis, uh, the books, textbooks, the concept from the books. Yes. So in this present week, our goal will be to revise the basic concepts. In summing up, कि हमारे जो हमने अब तक हमने पढ़ाई की है अपनी एनसीईआरटी बुक्स को रेफरेंस लेकर, उनको हम कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करें, उनके अलावा जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उनको हम याद करें. तो वो कैसे करेंगे? फॉर मैथमेटिक्स जो फोकस एरिया रहेगा हमारा वो एल्जेब्रा रहेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशंस एंड नंबर सिस्टम पर हम ध्यान देकर काम करेंगे. उसके अलावा साइंस में जो रिवाइज सेल स्ट्रक्चर है उसको हम रिवाइज करेंगे, फोर्सेस रिलेटेड टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, एंड द प्रेशर एरिया जो है उसको रिवाइज करेंगे. और उसकी रेफरेंस बुक जो रहेंगी वो एनसीईआरटी की अप टू 10th क्लास तक, अप टू 8th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक रहेंगी. उसके अलावा हमारे नोट्स रहेंगे जो हम प्रिपेयर करते हैं और उनके साथ में हम पढ़ते हैं. Likewise, social science में भी the focus area will be the freedom movements for the history and the constitution related topics in the polity, alongside the geography, the concept of the geography, and in geography we have to understand that we also go through the journal studies. तो वो उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, उसको भी हम रिवाइज करेंगे. सो एक्शन आइटम में हमारे पास क्या रहेगा कि हमको अपनी एक फॉर्मूला शीट बनानी होगी, उस पर हम काम करेंगे फॉर मैथ, एंड टाइमलाइन चार्ट फॉर हिस्ट्री. हिस्ट्री के लिए हम उनको वो बनाएंगे जो डेट वाइज, जो हम जिनको एक्चुअली में बोलते हैं क्या, क्रोनोलॉजी हिस्ट्री के लिए बनाएंगे. एंड फॉर अदर सब्जेक्ट आई ऑल्सो एडवाइज टू मेक लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, वेयर वी हैव सर्टेन नंबर्स, सर्टेन क्वांटिटीज एंड सर्टेन नेम ऑफ प्लेस एंड पर्सन्स. तो उसके लिए हम चार्ट बनाएंगे. नाउ कम टू द सेकंड वीक आफ्टर दिस. तो व्हेन इन दिस वीक वी हैव टू give the weightage. I have given the title, this weightage winner, means we have to think some deeply and to plan, revise the syllabus. For this mathematics, we need to make a 20 problem daily for geometry, quadrilateral, circles and mensuration. This include area and volumes. In the reasoning, which is count as general intelligence, thus practice is analysis, blood relations and classification for 45 minutes roughly daily, at least contract study इसके अंदर ये शामिल करेंगे. And again in English we will focus on active, passive voice, narration and tenses, because these three are the core topics which make us to understand other parts of the grammar. Alongside the remaining vocabulary I will guide you on in the later slide. So what will be the action item for this, to do these all these achieve all these goals? ये जो हमने गोल सेट किए हैं, इनको करने के लिए हमारे पास क्या आइटम होना चाहिए? वो आइटम इस वीक 2 में रहेगा कि इंग्लिश के लिए जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कम से कम 2 हम पैसेज डेली रिवाइज करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे. सो इट विल सपोर्ट फॉर इंग्लिश. नाउ द सेकंड लास्ट वीक, विच इज थर्ड वीक बिफोर द एग्जाम, इट इज सेकंड लास्ट वीक, 1 week before the exam week.
So in this week, our goal should be the transition from topic wise study to full length paper. इस वीक में हम पूरे लेंथ की पेपर की प्रैक्टिस करने का शेड्यूल बनाएंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम हर रोज एक फुल लेंथ पेपर खुद करेंगे। उसके बाद एक एवरी अल्टरनेट डे हम अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, जो हम अभी करते हैं उसको और डीपली करेंगे, वीक पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। वीक पॉइंट्स में जो होता है सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स हम जानते हैं। कैन वी स्टॉप इट? So we are considering that we will take a full-fledged test or at least one test daily for full-fledged test 3 hours, like as we are sitting in the exam hall, and thereafter we will revise our mistakes and mistakes like silly mistakes जो हम जानबूझकर मिस्टेक्स हो जाती है, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। उसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज, जो हमें कोई चीज़ की कमी महसूस हो रही है और हमें मालूम है कि हमें आंसर कर सकते हैं, तो उस लैक को फुलफिल करें, उस पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद इंटेलिजेंस के रिलेटेड रहेगा फोकस और मिरर इमेजेस एंड पैटर्न कंप्लीशन। दो जो इमेज रिलेटेड होते हैं रीजनिंग में, उस पर ध्यान दिया जाएगा। बिकॉज वी नो कि बहुत आसान सा होता है करना, लेकिन जरा सा एक चूक हो गया और दुर्घटना घट जाती है, वैसा हाल हो जाता है। तो इमेजेस को आइडेंटिफाई करना, उनका मूवमेंट, उनका रोटेशन कैसा है, उस पर ध्यान देना, वो सब किया जाएगा। लास्ट मोमेंट जस्ट टू गिव ए फाइनल टच। इसके अंदर क्या होगा कि ए मिस्टेक नोट, हमारा आइटम जो रहेगा वो अभी मिस्टेक नोटबुक जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे, और उस नोटबुक में जो मिस्टेक्स हैं फाइनल टाइम के लिए उसको हम रिकवर करेंगे उन मिस्टेक्स को। फॉर रॉन्ग आंसर, जो भी हमें रॉन्ग आंसर हुए हैं उनके लिए हम रिकवर करने के लिए मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे और उस पर काम करेंगे टू गिव इट ए करेक्ट लॉजिक फॉर रीजनिंग। Now this is the week when we have to just after that we have to be in exam. इसके बाद हम पेपर में बैठेंगे, तो ये हमारा लास्ट वीक रहेगा। तो लास्ट वीक में करने का क्या 7 डेज का हम लास्ट एक फाइनल प्लान बनाएंगे। उसमें पहले 3 दिन में हम थॉरोली अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे। उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फार्मूला जो सिस्टम ने बनाई थी उसको रिवाइज करना, उसको समझना। मिस्टेक नोटबुक में जो हमारी मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स को जो हमने हाईलाइट किया था उनको कैसे रिकवर करें। कोई अगर फिर भी कपल ऑफ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम हाउ कैन वी अवॉइड दोस, उस पर ध्यान देंगे। उसके अलावा करंट अफेयर जो हम जीएस करते हैं, तो जीएस के साथ में करंट अफेयर का अभी लास्ट मंथ का न्यूज़पेपर या करंट अफेयर की कोई बुक्स पर्सन, प्लेस एंड पीपल के लिए उनको याद करेंगे। उसके अलावा एक फाइनल टच करेंगे, पिछले साल का कोई भी एक पेपर दोबारा से फिर से करेंगे, अननोइंगली उसको करके सॉल्व करके देखेंगे वेयर वी स्टैंड। देन द डे बिफोर द एग्जाम, the 7th day, which is day before the exam, we will do a light revision in a relaxed manner without putting any burden on our mind and the body. So what will the action plan for action item for this? We will try to adopt the OMR sheet as it used to be in the exam. So we will do some practice filling roughly OMR sheet so that we can avoid this mistake, bubbling mistake, doing light circles out, going out of the circle areas. So we will avoid to avoid the error in filling OMR circles, we will fill OMR sheets. OMR sheet को भर कर देखेंगे. So this is now next is subject specific maximum score. This is just to give you an idea how you can solve it. If sometime you cannot solve it, you should give it plug to option like back into the equation. Back into the equation means when you don't know the answer, you can choose one option, put in the question, try to find the answer. So basically what you have to do, like you are having option number A, आपके पास option number A है, imply this on the question. If you get it, it is better. So finally we have to make a checklist for the success for the last 1 month study, which will include to memorize the math formulas. मैथ के formulas को याद करना अच्छे से, ये हमारी फाइनल चेकलिस्ट में होना ही चाहिए लास्ट मंथ के लिए। उसके अलावा डेली स्कूल मिला के कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमको करने पड़ेंगे, वो जरूरी है करना, कंप्लीट करना, सही से करना। और OMR फिल करने की प्रैक्टिस करना। OMR में जो हम शेड बनाते हैं, सर्किल शेड, वो प्रॉपर हो, उस पर ध्यान रखना, बिकॉज वो रॉन्ग शेड्स की नंबर विल गेट डिडक्ट व्हेन द आंसर आर स्कैन्ड। एंड फाइनली 8th क्लास की तक की जो आपकी बुक्स हैं साइंस की एंड SST की, उसमें जो भी कीवर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स, डेफिनेशन, उनको हाईलाइट करके रखना और उनको टाइम पर रिवाइज करते रहना। उसके अलावा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम बोलते हैं बी पॉजिटिव, अपने आप को एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना। इट शुड बी लाइक दैट आई कैन डू, वी कैन डू काइंड ऑफ थिंग। सो फॉर दिस आपको ये ध्यान रखना कि आपने जो लास्ट में के 1 महीने साल भर पढ़ाई करते हुए लास्ट के 1 महीने जो कॉम्पैक्ट पढ़ाई की है, जो अपने आप को मेहनत की है, उसको सक्सेसफुल आप कर सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।